Hello students, this video is for grade 2nd, so let us start. In this sheet, we are going to study three different parts in which we will get to know about three different subjects. The subjects are English, Maths and EVS. So let us start with our first subject of the sheet, Maths. The question says, solve the given questions of division. In this maths section, we have to do division. Maths में हमें division perform करना है. 42 divided by 3. क्या करना है? 42 को 3 से divide करना है. Okay, so 3 ones are 3, 4 minus 3 will be 1, 2 as it is उतारेंगे, it will become 12, 3 4s are 12, subtract कर देंगे, we will get 0, nothing will. आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 14. Okay, so answer will be 14. 14 3s are 42. Yeah, by table also you can do this. If you have learned the table, you can do this. Next is 78 divided by 6. सिक्स वन जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 8 एज इट इज उतार देंगे, 6 3 जा 80, सब्ट्रैक्ट करेंगे, नथिंग विल बी लेफ्ट. आंसर इज 13. 13 6 are 78. Next is 30 divided by 2. 30 को किससे डिवाइड करना है? With 2. 2 ones are 2. 1 will be left. 0 as it is उतारेंगे. 2 zeros are 0. Sorry. 2 5s are 10 ना. 10 उतारना है ना. So it will be, now the answer is 15. 15 2s are 30. Next is 70 divided by 5. 70 divided by 5. 5 ones are 5. सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 विल गेट, और उसके बाद यहाँ पे 0 ऐसे मेंशन करेंगे. 4 जा 5 4 जा 20, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इट विल बिकम नथिंग. आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 14. 14 5 जा 70. Okay, so if you have learned the tables, so by that also you can do, and by dividing also you can do. I hope now you will be able to solve all the rest of the questions. Let's move to the next section of the sheet, English. Rearrange the jumbled sentences. Jumbled sentences को rearrange करना है. Sentences हैं, कैसे बनता है sentences? Sentences are formed with words. A group of words form sentence. Okay, words का group क्या करता है? Sentence form करता है. बट मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए. ओके, उस ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब उस वर्ड के ग्रुप का मीनिंग होना चाहिए, तभी सेंटेंस होगा. ओके, सो क्या कर, यहाँ पे क्या है? वर्ड्स दिए हुए हैं, सारे वर्ड्स उल्टे पुल्टे हैं. सेंटेंस तो है बट मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम इन्हें सेंटेंस कहेंगे भी नहीं. तो इन्हें हमें रीअरेंज करना है. लेट्स डू इट. फर्स्ट इज बॉटल, एम्प्टी, माई इज. It will be like, my bottle is empty. मेरा बॉटल खाली है. And remember to put full stop at last. full stop last में put करेंगे और हमेशा कैपिटल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट इज गिव ट्रीज शेड us.
trees give us shade. पेड़ हमें छांव देते हैं. My Sam best is friend. Sam is my best friend. Going school, she too is. She is going to school. Okay, like this you will rearrange these jumbled sentences. My fruit favorite mango is. Mango is my favorite fruit. Okay, in this way you can arrange. Okay, इस सेंटेंस को आप एक तरीके से और अरेंज कर सकते हो. My favorite fruit is mango. Okay, you can do this in like this also. इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो. ओके, बस क्या होगा यहाँ पे मैंगो का एम कैपिटल हो जाएगा. वाई? बिकॉज इट इज अ फ्रूट नेम. एक पर्टिकुलर फ्रूट का नेम है, इसलिए मैंगो का एम हमेशा कैपिटल रहेगा. कॉमनली में यूज नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम एम कैपिटल रखेंगे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू रीअरेंज दीज वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस. रेस्ट ऑफ द sentence you will prepare by yourself so that you can practice. Now let's move the last section of this sheet, EVS. Fill in the blanks. Dash the light only when in use. Switch on the light only when in use. जब लाइट की ज़रूरत हो तभी लाइट को स्विच ऑन करें. Switch on the light only when in use. Okay, switch on the light only when in use. Next is dash the tap while brushing teeth. ब्रश करते समय क्या करना चाहिए? नल बंद कर देना चाहिए. क्लोज द टैप while brushing teeth. Prefer bicycle to travel for short distance. Okay, छोटे डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बाइसिकल प्रेफर करना चाहिए, सो दैट वी कैन बी हेल्दी एंड एनर्जेटिक. बाइसिकल का यूज़ करेंगे तो हमारे मसल्स स्ट्रांग होंगे और हम हेल्दी रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे. Use mug and bucket instead of taking shower. शावर लेने की जगह मग और बकेट का यूज़ करेंगे तो वाटर बचेगा ना. शावर में बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाता है, बट अगर हम मग और बकेट का यूज़ करेंगे तो वाटर विल बी सेव्ड. सो यूज मग एंड बकेट इंस्टेड ऑफ टेकिंग शावर्स. डू नॉट throw garbage on the roads. Okay, throw garbage. Okay, रास्ते में कचरा नहीं फेंकना चाहिए. Do not throw garbage on the roads.
3 R's, आपके 3 R's क्या है? R मतलब रीयूज, रिड्यूस एंड रीसाइकल। किसी भी प्रोडक्ट को 3 तरीके से बचाया जा सकता है, या तो रीयूज करके, या रिड्यूस करके, या फिर रीसाइकल करके। ओके, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं 3 R's, रीयूज, रिड्यूस एंड रीसाइकल। अवॉइड यूजिंग, क्या यूज करना अवॉइड करना चाहिए? यू विल टेल दिस, आप बताओ क्या यूज करना अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक्स। ओके, प्लास्टिक यूज करना अवॉइड करेंगे, सो इट विल हेल्प अस टू कीप क्लीन आवर एनवायरनमेंट। इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हद तक क्लीन रहेगा, और इस वजह से कोई भी एनिमल्स की डेथ नहीं होगी। डू नॉट वेस्ट वाटर, वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। Okay, so we have filled up all these blanks. I hope you all have understood this sheet very well. If you are having any kind of doubt related to any question, any topic, or any subject, you can ask me. Thank you.